Hi everyone, this is Harshita Arora and I'm over the moon today because I've received my dream score in IELTS General, and that is I have got 9 and 9 band in reading and listening, as well as 7.5 band in both writing and speaking module. And the only credit of this particular score goes to IELTS Made Easy and the trainer who taught me during my one-on-one classes. I couldn't score my desired score last time when I appeared for IELTS Academics, as I was stuck on 6.5 in writing specifically. So I thought of joining a particular institute who can correct my writing. However, my husband guided me that I should join IELTS Made Easy because they not only would correct my writing but also would provide me the live classes and teach me the exact tricks and tricks to tips and tricks to to proliferate my particular score. And that is what I have done. So the one-on-one classes really helped me a lot to overcome my fear of Thank you writing. so much. Thank you so much, Harshita. So, hello everyone. This is Sonam Sandhu from IELTS Made Easy, and this session is not about Sonam Sandhu or IELTS Made Easy or Raminda Sandhu. This session is about Harshita Arora, how she scored, how she got her desired band scores, and that too in the very first attempt after joining IELTS Made Easy. She's also appeared for IELTS academic module earlier, most probably last year, I believe. Yes, last Yeah. year. Yes. So she appeared for IELTS Academic last year, but she was not able to get her desired band score. She got only 6.5 in writing. However, she thought of joining us this year. And I would like to say thanks to her husband, because actually her husband is the one जिन्होंने IELTS में DC ढूंढा उनके लिए, and I believe she also must have thanked her husband a lot of times. Actually, होता क्या है, at times when we are stuck at a particular part. So reading and listening are the modules which we are able to do at home. Do you believe this, Harshita, or not? Yes, absolutely. I mean, reading and listening do not require a particular sort of guidance. You can do it by Yeah. yourself, but writing and Yeah. speaking does. Yeah. हाँ, सो बेसिकली रीडिंग एंड लिसनिंग, जैसा कि मैं भी अपने काफी वीडियोस में बोलती भी हूँ, लेसन्स में भी बोलती हूँ कि रीडिंग एंड लिसनिंग तो ऐसी चीजें हैं जो आप अगर वीडियोस भी देख लेते हो ना, मेरी आप ध्यान से वीडियोस देखो और अपनी सारी की सारी केम्ब्रिज बुक्स प्रैक्टिस करो. बहुत बार कमेंट करते हो कि मैम केम्ब्रिज के अलावा क्या प्रैक्टिस करें, और मैं हर बार यही बोलती हूँ, ओनली केम्ब्रिज, ओनली केम्ब्रिज, ओनली केम्ब्रिज. सो शी स्कोर्ड बैंड 9 विद ओनली केम्ब्रिज प्रैक्टिस ओनली. आपने केम्ब्रिज के अलावा कुछ और प्रैक्टिस करा था, नहीं, हर्षिता, की नहीं? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. बहुत सारी ना ऐसी वीडियो हैं जो आपको डिसीव करेगी यूट्यूब पे, जो फास्ट लिसनिंग करवाती हैं या वट एवर. एक दो चार ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत ज्यादा आपको डिमोटिवेट कर देंगे. आपको लगेगा यार स्कूल तो हमारा आ ही नहीं सकता, बट डोंट गो फॉर दैट. आप सिर्फ कैम्ब्रिज प्रैक्टिस करिए. मैंने मल्टीपल टाइम्स 11 to 17 कैम्ब्रिज की रीडिंग लिसनिंग एंड रीडिंग दोनों प्रैक्टिस की थी, एंड इट वाज डन. कोई दिक्कत नहीं है. एंड एक्चुअली मल्टीपल टाइम्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती. इवन व्हेन आई अपीयर्ड फॉर एग्जाम, आई वेंट थ्रू केम्ब्रिज ओनली. आई डिड नॉट यूज एनी अदर बुक ever in my life. I always went through Cambridge. I always practiced from Cambridge book. Basically, what happens when we are talking about Cambridge books, these are the most like authentic books available. So if we go through Cambridge and practice our reading and listening modules, we can easily score band 9 the way Harshita scored band 9. So you simply need to go through the strategies. And for reading, we have only two strategies that we use. RKLM एंड H&M मेथड. बेसिकली अगर हम बेसिक्स अपने क्लियर कर लेना, अगर आप मेरी कुछ प्लेलिस्ट, रीडिंग के प्लेलिस्ट और लिसनिंग के प्लेलिस्ट में अब शेयर कर दूंगी लिंक आपको, अगर आप वो वीडियोस देख लेते हो तो आप इजीली रीडिंग लिसनिंग में बैंड 9 स्कोर कर सकते हो. सिंपली प्रैक्टिस थ्रू केम्ब्रिज एंड गो थ्रू द प्लेलिस्ट. अब ये वाला पार्ट होने के बाद बात आती है जब आपको हेल्प की जरूरत होती है, बिकॉज अब केम्ब्रिज की बुक में कोई ऐसा तो नहीं आने वाला जो आपकी राइटिंग चेक कर दे या आपको गाइड कर दे कि हियर यू आर रॉन्ग हर्षिता, हियर यू आर रॉन्ग सोनम. कोई गलती अगर आप कर रहे हो, आपको कोई गाइड करने वाला तो होना चाहिए ना. तो गलतियां बताने के लिए यू शुड गो फॉर वन ऑन वन क्लासेस. और वन ऑन वन क्लासेस से क्या हेल्प मिली, कैसे हेल्प मिली, वो हर्षिता ओनली कैन टेल इन अ बेटर मैनर बिकॉज शी वाज द वन टेकिंग द क्लासेस. So Harshita, can you explain why one on one, why not batch course?
Actually, I have never taken batch course in my life before, but I can imagine कि batch course में क्या होता होगा कि जो exact बच्चे की गलती है उस पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता और टाइम वेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वो एक जनरलाइज्ड गलतियों पे फोकस करते हैं या बताते हैं। वन ऑन वन क्लासेस में आई टू 15 डेज ऑफ क्लासेस, लास्ट 15 डेज जब मेरा एग्जाम था तभी मैंने क्लास ली थी। तो मैं जो इंस्ट्रक्टर थी वो स्पेसिफिकली बता रही थी कि मेरी कहाँ मिस्टेक हो रही है, मतलब मेरी एक्चुअली मिस्टेक हो रही थी वोकैब में। बाकी सब चीजें मेरी ठीक थी, कोहेरेंस ठीक था, मेरा ग्रामर ठीक आ रहा था, स्ट्रक्चर टास्क अचीवमेंट भी ठीक आ रहा था, बट वोकैब में मेरी मिस्टेक हो रही थी। सो शी गेव मी अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, ज्यादा वर्ड्स नहीं थे, अराउंड 30 to 40 वर्ड्स थे, एंड शी टोल्ड मी कि यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन एनी ऐसे, और मिनिमम आपको कितने लेक्सिकल रिसोर्सेज यूज करने हैं ऐसे में, कितने लेक्सिकल रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं लेटर में, एंड शी यूज्ड टू चेक इट एवरी डे कि मैं सही जगह पे सही वर्ड यूज कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो दैट रियली हेल्प। अदरवाइज मैं ग्रुप क्लासेस में जाती तो वो मुझे पहले टास्क अचीवमेंट पहले सिखाते जो मेरा ऑलरेडी फाइन था, या कोहेरेंस सिखाते जो ऑलरेडी ओके था। Yeah, तो ये totally एक, true. हाँ जी, हेल्प मिलती है। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली होता क्या है कि बैच कोर्स इज डेफिनेटली फॉर द बिगिनर्स। इफ यू आर अ बिगिनर, इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, और इफ यू आर स्टक in reading and listening as well, if you do not know anything about these 4 modules, if you do not know about IELTS structure, then ideally you should go for a group class or a batch course, because in a batch course you'll get to know the basics of every single module, every single question type. You'll get to know about IELTS thoroughly. But now when you are stuck in 1 or 2 modules, there you need personal guidance, personal help, one-on-one classes, and that's when you require us. बिकॉज ये 1-on-1 क्लासेस से हेल्प क्या होती है, फ्रॉम डे 1 ओनली आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाती है। आपको डे 1 से पता चलेगा। जैसे अभी हर्षिता वाज टॉकिंग अबाउट वोकैबुलरी कि वो 40 वर्ड्स थे, वो 40 वर्ड्स मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर ने दिए। वो 40 वर्ड्स है कौन से? whenever any student joins us, तो हम उसे एक एक्सेस देते हैं हमारी किट का। किक स्टार्टर किट है, टीचर्स किट है, ये अलग अलग किट्स बनी हुई है जिसमें सारा का सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। वो किट मिलती है और वहां पे एक अल्टीमेट वोकैबुलरी प्रॉपर गाइड मैंने प्रॉपर बनाई हुई है जिसमें लिस्ट है, और उसमें आइडियली टोटल 53 वर्ड्स है। आउट ऑफ दोस 53 वर्ड्स आप क्या कर सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स उसमें ऐसे ही हैं जिसमें मैंने नॉट ओनली वर्ड, आई हैव गिवन द वर्ड along with the synonyms as well as the sentence to use that word, that particular word. And these are the words which you can incorporate in any essay easily, because these are the words commonly used in many essays, and these are the words, or this is the particular list which I prepared when I was appearing for my IELTS exam. So whenever I take IELTS exam, I try to prepare some new thing. So like be it Bandsbrew, Pix method. Did you use Bandsbrew and Pix? यस यस डेफिनेटली, ये बहुत ज्यादा मुझे हेल्प किया मेरे मार्क्स को बढ़ाने में। बैंड थ्रू मैंने बिल्कुल अच्छे से यूज किया था। मैं एग्जाम के मैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिख लेती थी बैंड थ्रू, और जो जो मैं कनेक्टर्स यूज कर रही हूँ उसको कट करती रहती थी, एंड सेम आई यूज फॉर लेटर ऑल्सो। तो मैं कहूंगी कि इसका तो बहुत ज्यादा हाथ है मेरा स्कोर बढ़ाने में, बैंड थ्रू एंड पिक्स मेथड। Bandsbrew का along हाथ with that मेरा I स्कोर also बढ़ाने used में भी those, पूरा पूरा है। पूरा I'll also say सीरियसली। this, क्योंकि जब और वो मेरे जो बैंड एक, 7 आए थे, हाँ हाँ, वो जो बोलिए एक आप। वाले सेंटेंसेस थे, कंडीशनल सेंटेंसेस थे, कंडीशनल, और हाँ एक जी, जो पैटर्न मिलता है डबल स्पेसिफिकली, कंपैरेटिव, हाँ जी, डबल कंपैरेटिव सेंटेंस पैटर्न जो आपको मिलता है ना, कि आपको जो बॉडी पैराग्राफ है वो किस कनेक्टर से स्टार्ट करना है, उसके बाद कौन सा हाँ करेक्टर यूज करना है, तो दैट्स अ फिक्स्ड पैटर्न, आपके दिमाग में वो फिक्स्ड है। तो आपको हाँ उसको सोचने में टाइम नहीं लगाना जब आप एग्जाम लिख रहे हो कि यहाँ पे कौन सा कनेक्टर यूज करना, क्योंकि आपको पता है कौन सा करना है, तो बहुत टाइम सेव होता है, और आपके कनेक्टर्स भी सारे यूज हो जाते हैं। मैंने 8 कनेक्टर्स यूज किए थे, 8 to 9, और मुझे लगता है इसी ने ही मेरा स्कोर जो है, और एक क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करना, ये मुझे पहले ये सब चीजें नहीं पता थी, ये सब आपको करना होता है, और आई थिंक दिस इज द तो गेम दैट चेंजर। मीन्स आपने अपने लेक्सिकल रिसोर्सेज इन ग्रामेटिकल रेंज एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी भी इम्प्रूव करी। राइट So राइट। guys, what happens? ये जो Bandsbrew है, what I was saying कि Bandsbrew is the method which helped me in getting band 7 in writing. So then I incorporated conditional sentences in my essay and I got 7.5. Afterwards, I was thinking, what exactly should I use? Then I came up with this PICS method just a day before the exam.
and that PICS method helped me in scoring band 8 in writing. So whatever I have incorporated, whatever I have provided you guys in the Kickstarter kit, whatever I'm teaching you through my videos, this is not something like, this is not actually a hypothesis. It's actually a law, because it has been proven not 10 times, a number of times, and more than 5,000 students have gotten benefited with the help of this rule. Now, many students on IELTS Made Easy have already scored 7.5 band easily in writing module. So guys, basically होता क्या है कि हमें यूज करना है राइट टेक्निक राइट टाइम पे, और हर एक चीज आपको स्टडी मटेरियल के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है. वर यू सेटिस्फाइड विद द स्टडी मटेरियल, हर्षिता? यस, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल था. मैंने उसमें बेसिक ग्रामर भी देखी थी, कहाँ पे अंडर ग्रामर यूज के करना है, नोट्स कहाँ बना पे. के दिए हुए हैं मैंने. हाँ हाँ हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है. और बिल्कुल सबसे बड़ी बात है ना कि जो चाहिए बस वही है उसमें. ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की चीजें हैं, जो आपको यूज करना है एग्जैक्टली वही वाला मटेरियल करना है. तो दैट वाज वेरी प्रिसाइज एंड हेल्पफुल, बहुत अच्छा था. that's what I totally say कि when it comes to IELTS preparation, IELTS writing, we do not require full grammar. We simply require only a few parts of grammar, because it's like just a drop in the ocean that we are learning for the IELTS part. So whatever you require for IELTS, that has already been added in the Kickstarter kit, and that we give to every single student of ours. So that's what you need to do. So the grammar, advanced notes, bands group, PICS method, यही करने की जरूरत है और कुछ नहीं करना है. Vocabulary सब कुछ आपको यहाँ पे already ready मिलेगा. So simply यही चीज है कि अगर आप right way से करो. मैं at the end ये जरूर बोलना चाहूंगी कि it's not only about the way we have provided you the material. I always say 65% रोल हर्षिता का है और 35% रोल हम लोगों का था. तो दैट मीन्स हमेशा एक स्टूडेंट का 65% रोल होता है और 35% रोल एजुकेटर का होता है. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि एजुकेटर समझाता है स्टूडेंट को, प्लीज डू दिस, ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस और डू दिस होमवर्क एट होम. सो स्टूडेंट्स डू नॉट फिनिश होमवर्क, they do not go through a particular file, they do not do whatever we are asking them to. So wahan pe bhi problem aati hai. So she was a student who followed every single strategy, and that's why she is here. And the way Harshita scored, I believe, Harshita, what do you think? If we follow the same strategies, can anyone score easily? मैं लिटरली यही कहूंगी कि जो आइल्स का एग्जाम है वो बहुत टफ हम लोगों ने बना दिया है. इट्स नॉट दैट टफ, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. आई वुड पर्सनली से आई हैव रिटन 100-200 एसेज. लिटरली मैंने उतने एसेज लिखे हैं, उतने लेटर्स लिखे हैं. एंड इनफैक्ट मेरा एग्जाम उतना अच्छा हुआ भी नहीं था, बिकॉज मेरे को कोल्ड फीट हो गया था जैसे ही मैं एग्जाम दे रही थी. आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मेरा इतना स्कोर आएगा, बट बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस जो मैंने की थी, तो मेरा एग्जाम बुरा होते हुए भी मेरा 7.5 राइटिंग में आ गया, बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस ओनली. अदरवाइज जो मेरे टॉपिक्स थे बहुत बेकार टॉपिक्स आए थे एग्जाम में, एंड आई वाज लिटरली लाइक क्राइंग. मैं घर पे आके बहुत रोई थी अपने हस्बैंड के आगे कि इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी मेरा एग्जाम इतना घटिया हुआ है कि मेरे नहीं आएंगे मार्क्स. बट मतलब लेकिन वो प्रैक्टिस थी जिस वजह से आ गए. और एक चीज एक चीज मैं ऐड करूंगी कि मैंने पेन पेपर बेस्ड आइल्स दी है 2 बार. तो उसमें मैंने एक चीज की थी कि जैसे वो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था ओपन करके. वो बोलते हैं कि पहले आप क्वेश्चन पेपर पे अपना नाम लिखो, रोल नंबर लिखो. वो मैंने जल्दी से लिखकर एकदम क्वेश्चन पेपर खोल के ना, जो इनिशियल 2 मिनट्स आपको मिलते हैं टाइमर स्टार्ट होने से पहले, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था. और वो 2 मिनट्स में मैंने ना दिमाग में फ्रेम कर दिया था कि मुझे क्या लिखना है लेटर और ऐसे में. तो वो मेरे 2-3 मिनट वहां पे सेव हो गए थे. इफ यू कैन डू दैट सारे मॉड्यूल्स में, कि आप जल्दी से अपना नाम और रोल नंबर लिखकर अगर आप क्वेश्चन पढ़ लो बिफोर स्टार्टिंग द टाइमर या बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द लिसनिंग ऑडियो, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी. लिसनिंग में स्पेसिफिकली आप मल्टीपल चॉइस पढ़ के रखो. मतलब आपको फर्स्ट जो पार्ट होता है सेक्शन ए पढ़ने की जरूरत नहीं है. सेक्शन बी और सेक्शन सी जो आपका होता है जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तो इनिशियल 2 मिनट या 3 मिनट जो आपको मिलते हैं, प्लीज आप उसको ना रीड करके रखो और इम्पोर्टेंट वर्ड्स आप उसमें अंडरलाइन कर लो. वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको, क्योंकि लिसनिंग बहुत फास्ट हो गई है आजकल. ये एक ट्रूथ है, मेरा भी बहुत फास्ट आया था. Yes, true. बिल्कुल सही बात है. And I would say the way Harshita has shared as her experience here, this experience is going to help a lot of you out there. And simply focus on the right strategy at the right time. If you are wasting a lot of time on the strategies which are
not right, which are wrong. There is no point of going through the same strategies again and again. Rather, focus only on the part which you require. So you need not to go through full grammar, only the parts required for IELTS preparation, and that's where our study material helps. So thank you so much, Harshita, for joining us today. And Thank I you. would just say one thing, if you can share your experience in just 1 minute, can you share what exactly helped you the most and why did you join IELTS Medisio? So I would say ki what exactly helped me was the one-on-one classes. That's the only driving factor that actually made me join this particular class, because earlier I was going for assessment only, like my writing assessments only, and they were costing me very high also. But IELTS Made Easy can provide you these one-on-one classes at a very reasonable rate, and you would definitely be benefited, because the trainer would actually point out your mistake, your personal mistake, rather than covering the mistake of a crowd. So this is the driving factor which made me join this particular institute, and I'm really very thankful for to the trainer and the entire organization. थैंक यू सो मच हर्षिता. सो लास्ट में मैं यही आप लोगों को कहना चाहूंगी कि आप में से काफी सारे लर्नर्स में से कमेंट सेक्शन में पूछते हो कि मैम फीस स्ट्रक्चर क्या है. तो यार फीस स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है बिल्कुल भी, जैसा कि हर्षिता ने खुद बोला. अगर स्टूडेंट बोल रहे फीस स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है तो आप खुद समझ जाओ कि इट इज नॉट मच, बट सिंपली आपको वही चीज से डे 1 से इम्प्रूवमेंट आपको दिखने लग जाती है और वही आपको चाहिए होता है, एंड दैट विल ओनली हेल्प यू इन गेटिंग योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स. So thank you so much, Harshita, for taking out My time pleasure. for us. And I hope this will help a lot of learners out there. Yes, all Thank the you. best to everyone. Yeah.